दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए आज दिल्ली के प्रेस क्लब में किसान मजदूर कमीशन, एक ऐसा कमीशन जो जनता ने अपने लिए कोई इसमें सरकारी कोई मामला नहीं है। इसमें जो किसान और मजदूरों के लिए काम करने वाले जो संगठन हैं, उनके लोग, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ पत्रकार जो इस दिशा में लगातार कंसर्न है, उनके जैसे पी साईनाथ हैं, नौशरण है, इस तरह के जो बुद्धिजीवी हैं, वो लोग मिलके ये कमीशन बनाए थे। कमीशन में कुछ कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ कुछ डिमांड्स हैं, जिसको लेके आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसमें जो सबसे बड़ा दो पार्ट है। एक पार्ट है जो किसानों और मजदूरों के लिए क्या क्या डिमांड्स, डायरेक्ट डिमांड्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसमें करीब करीब 10 या 12 सेक्शन है। जैसे इसमें लैंड राइट्स का मसला है, गारंटी राइट बेस्ड सोशल प्रोटेक्शन का भी मसला है, कॉमन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो मसला है, इसके साथ एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मार्केटिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट से लेकर डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ जो सेक्टोरल कुछ मसले हैं, जैसे महिलाओं का मुद्दा है, आदिवासियों का मुद्दा है, दलितों का मुद्दा है, मछली पालकों का या मछुआरों का जो मुद्दा है, उसमें ग्रामीण जो खेतिहर जो मजदूर हैं उनका मुद्दा है, पशुपालन से संबंधित तमाम मुद्दे हैं, और सहकारिता का मुद्दा है। इन पे विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई और इसको पेश करते हुए पी साईनाथ ने काफ़ी डिटेल में बातचीत की है, और बाकी जो मजदूर किसान नेता थे उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी में है, लेकिन उम्मीद है सबको समझ में आए। I should mention that I'm only here because Professor Jammohan is out of the country and he is the convener. And Dr. Dinesh Abroad, because of whom this whole thing is happening, has fallen out of it. So I'm a poor substitute for them, but here I am. I'd like to say, take a minute on the political context in which we are meeting and this whole thing is unfolding. We've seen three great feats achieved in the past 1 month. One, the government of India confers a Bharat Ratna on Professor M.S. Swaminathan, whose entire life's work and contribution it has trashed and put in the dustbin. Then gives him a Bharat Ratna. It destroys, it goes to court, filing an affidavit saying this commission's report, Swaminathan's report, cannot be implemented. It is distort market prices. It destroys the man's heart, and then when he is dead, gives him a Bharat Ratna. Second, last month we became, in the same 1 month, we became, as far as my knowledge goes, last month we became the first nation in the world to use aerial drone warfare against its own citizens and farmers. Now, this is not, there have been other situations where governments have used drone warfare against insurgent armies, yeah, or against foreign invaders, or against domestic terrorists. This is against unarmed civilians, your farmers. And you saw in addition to the drones, like in 2020, multi-layered barricades, iron nails, hundreds of feet of concertina barbed wire, concrete
barricade blocks, trenches, anti-riot vehicles. Who are you fighting? Who are you fighting? Huh? With this kind of a thing, who are you fighting? You're not seeing this kind of action on the line of actual control with China. You're seeing it in Haryana and Delhi. The third thing was that the country came out with a completely nonsensical, very distorted household consumer expenditure survey, in which you change the methodology completely. This is how farmers' suicides numbers were also destroyed. You change the methodology completely and then proceed to compare it with 2012 and 2013, when no comparison is possible because the entire methodology of conducting the survey has changed. But even then, one thing sticks out from even their wonderful consumer survey, household consumer expenditure survey. Farmers' income is below the rural average. Farmers' income is below the rest of rural India. And this, when you have completed that time period in which you were to double farmers' income. You were to have doubled farmers' income by 2022, and you have succeeded in making them remain the lowest income group in the Indian countryside. It's in this situation that we are meeting. Why? Who are we? Who is the nation of farmers? Why do you need this Kisan Commission? Number one, look at what has been the fate of the various commissions. There have been three types. One is government appointed commissions, including what we call the Swaminathan Commission. The National Commission for Farmers, the government appointed commission. It labored 4 years to produce brilliant reports with sections which I don't agree with, but I can see what the intent and motivation was, and it was then killed by two successive governments, by the UPA and by the NDA. A government appointed commission in the final language could do nothing when the government itself chose to kill them. Then comes the Supreme Court, judicial appointed commissions. Supreme Court appoints a commission which I was asked to be a member, and I think, very good for me. I declined immediately without even thinking it over. A commission consisting of 4 members, one of whom resigned before the first meeting, meaning 25% of the commission went off without the first meeting, and none of whom is representative of the farmers' movements, the serious farmers' movements, or of other classes of the agrarian society, nor of anything but market fundamentalists and pro-corporate stuff. The third has been, after the Kisan Andolan, the government has appointed, set up various little bureaucratic commissions. We don't know what they are doing, who is heading them, but they periodically give out pronouncements. It seemed to us in the nation of farmers that you need a commission that is accountable not to government, not to bureaucracy, not to judiciary, but accountable to farmers and laborers themselves. That's who the commission should be. And for that reason, this commission is two-tiered. I, for instance, am not a member of the Kisan Mazdoor Commission. We decided that the actual Kisan Mazdoor Commission should be held, and the membership should be overwhelmingly that of representatives of the classes or their fighting organizations, right? And not just Kisan, but we have taken Kisan in the broadest sense of the word, including adding something to the
means landed farmer, landless farmer. I always insist on using this concept, landless farmer, because without the landless laborer, there could be much farming. Correct to address them, I believe, as landless farmer, tenant farmer, women farmers, Dalit farmers, Adivasi farmers, displaced farmers, and also please know that the census of India in agriculture also includes fisheries and forestry. And the construction of the Kisan Mazdoor Commission tries to include all sections, all these sections. So you will find that the main Kisan Mazdoor Commission is overwhelmingly held by people from those kind of organizations representing the Kisan Mazdoor, several of whom are on this platform today. And that is one thing. So, including in this commission, we are including and trying to include nomadic pastoralists, yeah, forest dwellers, fisher folks movements. All these come together. The second tier of Kisan Mazdoor Commission consists of experts, if you like, or people who have also associated themselves, but who are not farmers themselves. The Nation for Farmers as a platform was a platform of non-farmers, of public intellectuals, concerned citizens, which came up, which was born out of the Great Nashik March of 2018, of 40,000 Adivasis marching in the city of Mumbai from Nashik. So, the Nation for Farmers has taken the initiative to bring a representative body together of the Kisan Mazdoor Commission and recognizing the need for the broadest possible alliances on the farming issue. Today we brought a number of for months, the first meeting of to draft all this stuff took place in June last year. And since then, the process has been on. There have been some 13, 14 thematic groups which worked on, say, credit. Oh, by the way, to make it really representative, in the Kisan Mazdoor Commission, we even have two people from the banking sector, because credit is at the heart and soul of this crisis. So there are people from the All India Bank Officers Confederation and from the All India Bank Employees Confederation. I have a bias towards that because in the last 20 years, they're the ones who educated me on how our schemes, how the banks are being used to devastate the Kisan. Okay? So this was the idea, and the Kisan Commission, on having met a few times and met many times online and otherwise, we produced this agenda for 2024, which will be released today. Ravsharan will take over and tell you about the intent of the Kisan Commission. The agenda, I think it's already been distributed to all of you, and you can ask us any questions you wish. Ravsharan. Thanks, Sainath. I'm just going to read out a few lines from the statement of intent of the Kisan Mazdoor Commission. Convinced that well-being of farmers is not just about economic survival of majority of Indian households, it's about our national dignity, diversity, civilizational heritage, freedom movement legacy, constitutional vision, economic, ecological and social justice, fundamental rights, directive principles of state policy. Farmers are not just a residue from our past. Farmers, agriculture and villages are integral to the future of India and the world. That's the starting point of our coming together. जैसा कि साइनाथ जी ने बताया कि इस कमीशन में कौन-कौन लोग आए और किस-किस कंसर्न से आए, वो इसमें स्टेटमेंट में भी व्यक्त होता है. मैं
गुजारिश करूंगी कि आप उसे जरूर देखिए, उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि वो एक it is about coming together of our understanding of why farmers, why farm laborers. So इसको सभा को आगे जाते हुए मैं गुजारिश करूंगी अशोक भव्य जी से, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया किसान सभा के, कि वो अपनी बात रखें. All my friends, good evening. P. Sainath and Nausharan Singh have already told you the extent and the background of this Kisan Mazdoor Commission. I will only very briefly just talk about the executive summary which has been distributed to all of you. The agenda has been given in full, but that agenda is too big to be, here made executive summary. 3 हिस्सों में ये एग्जीक्यूटिव समरी हमने रखी है, वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट की है, आप सबके पास है. One is right to land, water and commons for all. That is number 1 section of the Kisan Mazdoor Commission, which we are zeroing in as a part of the executive summary. Second section is right to food, employment, education, health and social protection. That is the second section. And the third one is right to public and bank finance, production inputs, knowledge, marketing, etc. तो ये 3 जो sections है, इसके अंदर हमने ये पूरा एग्जीक्यूटिव समरी जो ये किसान मजदूर कमीशन के एजेंडा था, ये इसमें रखा है. जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स सिर्फ हम उसको हाईलाइट करेंगे 1-2-3 मिनट में, क्योंकि बाकी सभी साथी उसमें बात करेंगे. लैंड के अंदर हमने पहले बोला है कि प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू लैंड एंड वाटर. That is one thing that we have said, and many other issues we have taken up regarding the above ceiling land to be given to the governments, then that has to be distributed to the landless. All those issues we have taken up. Tenants we have made as a separate point, क्योंकि tenants के बारे में कोई भी विचार नहीं होता है. और ये आखिरी 2 पॉइंट है, ये मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Recognize women as farmers and grant them land rights, secure their tenancy rights over leased lands. Regarding women farmers, that is today a fact that women are not considered farmers at all, even though they do more than 70% of the agricultural work. So this is one very important point that we have very much highlighted. Fifth one is regarding Adivasi farmers. Adivasi farmers are generally not just considered as farmers, but although they are doing tremendous job in large parts of the country. Regarding that, the whole question of the Forest Rights Act, which is much more prevalent by the total neglect of it or the violation of it, rather than by the implementation. So this is one whole section on land, water, etc. The second section, अनाज के बारे में, रोजगार के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सामाजिक सुरक्षा है, इसके बारे में कई चीज हमने लिखी है. इसके अंदर यूनिवर्सल पब्लिक distribution system, ration, that is exactly what we are saying, which should be expanded to include many other items. Where the education and health through the public sector, that is what we have said. Job security, Manarega, all these issues we have taken up. SC, STs, etc. Pension, old age pension, that is one very important question that we are there. And also the urban employment guarantee. And then the other issue, the third and last issue is public and bank finance, etc. Where we have said a complete loan waiver for the farmers is the need of the hour, because in the last 10 years of this government itself, more than 1 lakh farmers have been forced to commit suicide due to debt.
This is the NCRB data, National Crime Record Bureau data. More than 1 lakh farmers have committed suicide in the last 10 years of this government alone. So that is one thing. But no loan waiver is there for the farmers in spite of this. However, 15 lakh crores have been written off for the corporates by this very government. That is the point that should be understood. The other thing is regarding the very important point that has been made by the farmers movement ever since the struggle against the farm laws. Demand number 2 at that time, demand number 1 now, MSP plus, that is the rate of 1.5 times the cost of production. C2 plus 50% as written by the Swaminathan Commission. And this and many other issues we have highlighted in this point. So therefore, these are the main issues of the executive summary. हमें लगता है कि ये एग्जीक्यूटिव समरी के जो मेन पॉइंट्स है इसके आधार पर हमें आगे जाना होगा और ये जो कमीशन है वो अपना काम पूरा करके इसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट और बातें जरूर आपके सामने रखें। धन्यवाद। मैं सत्यवान जी से कहूंगी कि वो इस बात में जुड़े। मीडिया के मित्रों, किसान खेती का मुद्दा देश का मुद्दा, ये मानव सभ्यता का से जुड़ा सवाल है। हमारे किसान मजदूर आयोग का ये जो ऑब्जर्वेशन जो ये मत प्रकट किया है, हम इसको अपने दिल की गहराइयों से किसान मोर्चा की ओर से ऑल इंडिया किसान खेती मजदूर संगठन की ओर से हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे किसानी जीवन के क्रक्स को, मूल को, सार को सामने लेकर चले। पिछले 8-10 महीने से हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में हमको अखिल भारतीय स्तर पर भी विभिन्न राज्यों में भी किसान मजदूर आयोग ने हमको साथ रखा है, राय मशवरा चर्चा। और जिस वक्त ये आज एजेंडा पेपर रिलीज हो रहा है, देश का किसान उबार आंदोलन पर अभी रामलीला मैदान में बड़ी महापंचायत दी है। पिछले 30 सालों से करीबन जब से पूंजीवादी भूमंडलीकरण वैश्वीकरण का सवाल आया है, हम महसूस करते हैं कि हमारा कृषि जो है, जल, जमीन, जंगल, इसके ऊपर कॉर्पोरेट का कब्जा दिलाया जाता है। इसमें सिंचाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन के साथ सिंचाई निर्भर करती है बिजली, डीजल और मशीन। लेकिन ये सभी बड़े पूंजीपति घरानों, कॉर्पोरेट के नियंत्रण में है। और जमीन को जो हमारा आजादी आंदोलन था, किसान आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी, इसलिए 100 सालों से भी ज्यादा है। हमारा जो मूल जो दिशा थी कि जमीन जोता को, लेकिन इन सालों में जमीन कॉर्पोरेट को यहाँ खड़ा कर दिया गया। जो हमारे जंगल के अधिकार, फॉरेस्ट राइट्स थे, हमारे आदिवासी, उनको एक तरफ कर दिया गया है, उससे वंचित किया जा रहा है। और जो पेशा कानून, ग्राम सभा के अधिकार, इस तरह से बीज जो है वो खेती का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सुधरा हुआ बीज पूरी तरह से कंपनियों के हाथ में चला गया है। और अगर जीएमसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो भारत सरकार करने जा रही है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, कृषि पूरी तरह से तबाह हो गया। रिसर्च को पहले ही दे दिया गया है, पेटेंट कानून, कृषि मुक्ति, लेकिन उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब लाया जाता है। पर्यावरण का सवाल भी खेती से भी जुड़ा हुआ है, जनजीवन सूत्र है ही। अति वर्षा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, ये सभी हमारी कृषि को तबाह कर रहे हैं। और भारत सरकार की जो नीति है, मुआवजा देने की नीति,
किसानों से छीना जा रहा है। आप जानते हैं 3 काला कानून आया था। रोजगार का सवाल भी हमारे किसान के जीवन में सिर्फ खेती और मजदूरों के लिए नहीं होता है ही, ये किसानों का भी, छोटी जोत का आ गया किसान, उस परिवार के बच्चों को पढ़े लिखे अनपढ़ हो, उनको अगर रोजगार नहीं मिले तो आज खेती किसानी में ग्रामीण जीवन में टिके रहना, सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये हमारे जो किसान मजदूर कमीशन है, इसने इन सभी मुद्दों को समाहित किया, और भी महत्वपूर्ण मुद्दों को समाहित किया है, और हम महसूस करते हैं कि ये एजेंडा पेपर हमारे किसान आंदोलन को एक थ्रस्ट देगा, हमारे किसान आंदोलन को एक बल देगा, किसानों के जीवन के सही सवालों को लेकर लेकर चल रहा है, और हम एक हृदय से महसूस करते हैं 13 महीने का आंदोलन में जो हमारी जीत हुई, ये हमारे संघर्ष का फल तो सही है, लेकिन देश के लोगों का जो अपार बहुमत समर्थन हमको मिला, और उसमें इंटेलेक्चुअल्स का, मैं गांव से आता हूँ, गांव में मैं किसान के रूप में क्या कहता हूँ, इसके मुकाबले गांव का टीचर, गांव का प्रिंसिपल क्या कहता है, गांव का किसान उसको बेहतर ढंग से सुनता है। और हम इस बात की कदर करते हैं कि किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी जीत के लिए जनमत का होना जरूरी है, एंड इंटेलेक्चुअल्स आर गार्जियंस इन दिस एस्पेक्ट। इनका जनमत के बिना हमारा जीतना, अंतिम जीत के लिए हमारे लिए बहुमूल्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑब्जर्वेशन के साथ मैं बहुत श्रद्धा के साथ जो आपने किया आएगा, एजेंडा पेपर आज रिलीज हो रहा है, ये हमको बल देगा, शक्ति देगा, दिशा देगा। साथियों, जैसे पहले के वक्ता बता चुके हैं, ये जो किसान मजदूर कमीशन है, संघर्षों के बीच से उभरा हुआ एक कमीशन है। निरंतरता के साथ पिछले 30 साल से किसान, खेत मजदूर एकजुटता के साथ, निरंतरता के साथ संघर्ष करते आए, और इन 30-32 सालों में हमारे देश में जो आर्थिक नीतियां लागू कर रहे हैं, इन नीतियों के चलते कम से कम 10 लाख किसान और खेत मजदूर और कृषि से जुड़े हुए लोग खुदकुशी करने में मजबूर हुए। ये 30-32 साल का बात है, पर 2014 में जब नरेंद्र मोदी और भाजपा चुनाव का सामना कर रहे थे, तो काफी लुभावने वादे किए। जो 91-92 से जो नीतियां लागू हो रहे, उन सभी नीतियों को वापस करने का, उस तरह का एक माहौल बनाने का कोशिश किया, और ये कहे कि किसान और खेती का जो संकट है, गहरा संकट है, अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के आते हैं, ये संकट नहीं रहेगी। उसके साथ साथ जो यूपीए के समय में स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश आए थे, उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम देने का किसान के फसलों के लिए, उसको लागू करेंगे। 300 से अधिक जनसभाओं में खुद प्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी या फिर उनका डिजिटल इमेजिंग के 3D इमेज के साथ ये वादा था कि किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिश के अनुसार उत्पादन लागत खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। उसके बाद साइनाथ जी यहाँ बात रखे, चुनाव जीत के आने के बाद मैं और कॉमरेड हनन मुल्ला, हम लोग कृषि मंत्री से मिले थे। हम कहे कि आपका जो वादा है इसको पूरा कीजिए। कृषि मंत्री उस समय के हमको कहते हैं, आप इसको इतना गंभीर रूप से क्यों ले रहे हैं? ये चुनाव आते ही हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी अलग अलग वादे करते हैं, वो चुनाव के लिए किया गया है, उसको लागू नहीं हो सकता। और अमित शाह बाद में कहते हैं कि ये चुनावी जुमले हैं, और प्रधानमंत्री, इस सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट में भी, अदालत में भी ये कहते हैं कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इट इज मार्केट डिस्टॉर्टिंग।
सो इन जो 32 साल में अगर 10 लाख से ज्यादा किसान, खेत मजदूर और खेती से जुड़े हुए जो मजदूर, दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं, तो इसमें सबसे गौर करने लायक बात है पिछले 10 साल का आंकड़े अगर उठा के देखें। इन 10 सालों में जब नरेंद्र मोदी का वादा था कि कृषि संकट खत्म होगी और किसान को सही उनका आमदनी दुगना होगी, तो उन 10 सालों में क्या हुआ? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4,25,000 के आसपास किसान और खेत मजदूर और दिहाड़ी मजदूर जो हमारे किसान परिवार से, खेत मजदूर के परिवार से ग्रामीण इलाकों से शहरों तक पलायन करके आते रोजगार के तलाश में खुदकुशी किए। पूरा दुनिया में मानव इतिहास में ऐसा कहीं नहीं होगा कि ग्रामीण एक तबका, समाज का एक तबका इतने बड़े संख्या में खुदकुशी करने में मजबूर हुए। और इन संख्या में बहुत से राज्य सच नहीं कह रहे, क्योंकि जैसे बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का सरकार कहती है एक भी खुदकुशी नहीं हुआ। हम जानते हैं वहां पे खुदकुशी हुए। और भी जैसे गुजरात और अन्य जो राज्य है, ये भी सच्चाई नहीं बताते। इसमें महिला नहीं है, इसमें आदिवासी किसान नहीं है, इसमें हमारे बटाईदार नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण अगर दूं, सिर्फ आंध्र प्रदेश में लगभग 30 लाख बटाईदार हैं जिनको ना कोई सब्सिडी मिलता है, ना कृषि ऋण मिलता है, ना और कोई जो अभी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे कुछ योजनाएं हैं उसका भी फायदा नहीं। तो ये जो संख्या है इससे भी ज्यादा खुदकुशी इस देश में हो रही है। तो आज ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसान मजदूर कमीशन का जो 2024 का एजेंडा है, ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी के सामने हम कहते हैं कि आप जो लागू करते आए नीतियां, वो पूरा विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, IMF जैसे जो संस्थाएं हैं, उनके दबाव में यहाँ लागू करें और कॉर्पोरेट हित के नीति आप लागू करते आए। अभी साफ पता चल रहा है कि जैसे 3 काले कानून आए थे, उसके पीछे कैसे अदानी जैसे लोग का हाथ रहा है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिस तरीके से पता हो रहा है कि MRF जैसे जो कंपनियां हैं, वो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिए हैं। नीतियां भारत के रबर किसान के खिलाफ जो नीतियां यहाँ बन रहे हैं, ये सभी आज खुलेआम लोगों को पता चल रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक खबर बाहर आ रही है। इतना ही नहीं, जो हम लोग के सामने वादे थे, जो ये उम्मीद जगाई थी कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का जो सरकार है, वो किसान और खेत मजदूर का संगठन जो संकट है उसको एड्रेस करेगी, वो आज के दिन बिल्कुल नहीं है। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं मोदी की सरकार की गारंटी, हर गारंटी धोखा। Each one of their guarantees are a fake. The promise that farmers' income should be doubled. If it was doubled by 2022, according to the government itself, 2,71,000 should have been the yearly income of a farming family. It is below 1,20,000, around 1,22,000. Regarding NREG, 200 दिन का रोजगार देना, मेरे खेत मजदूर संगठन से अलग अलग 2 साथी है, वो भी बात रखेंगे। 200 दिन आज के दिन 50 दिन भी नहीं दे पाते। महंगाई बढ़ रहा है और इस स्थिति में किसान, खेत मजदूर और जो दिहाड़ी मजदूर है वो खुदकुशी करने में मजबूर है। देश के किसान और खेत मजदूर कर्ज में डूबे हैं। जैसे बहुत पहले ब्रिटिश साम्राज्यवादी काल के बारे में कहते थे कि किसान कर्ज में जन्म लेते, कर्ज में जीते और कर्ज में मर जाते, उसी तरीके का हालत आज भी है। यहाँ फिर से कंपनी राज को लागू करने का एक कोशिश है, उसके खिलाफ ये जो किसान मजदूर कमीशन, ये सिर्फ चुनाव तक बना हुआ कमीशन नहीं है, आगे भी रहेगी। आगे जो भी सत्ता में आए उनके सामने भी
आईना दिखाते रहेगी क्या सच्चाई है, क्या हम चाहते हैं। तो इतना कहते हुए मैं मेरा बात जी, बहुत शुक्रिया। बीजू की बात से मैं एक दो चीजें और यहीं पे जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो जिस तरह की प्रॉमिसेस और क्लेम्स मेक किए जा रहे हैं और जिस तरह की वायदा खिलाफी हमने पिछले 10 सालों में देखी है, उसमें मैं महिलाओं का भी आंकड़ा जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार ये बात हुई है कि हमारी सरकार, मोदी सरकार, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं की पॉवर्टी दूर करने के लिए पूरी तरह से डिटर्मिन्ड है, कमिटेड है। पर अगर आज हम महिलाओं को देखें, महिलाओं की स्थिति को देखें, रूरल वुमेन की, if there is a crisis which is writ large on the body politic of rural India, it's being endured by the women of rural India more than what their proportional share in the population is. There are about 70% जो महिलाएं, जितनी कामकाजी महिलाएं हैं, 70% के करीब महिलाएं खेती बाड़ी में काम करती हैं, चाहे वो कल्टीवेटर है या एग्रीकल्चर मजदूर हैं। अगर हम उसके और आंकड़े को खोल के देखें, जो इस सरकार का हमारे आंकड़े जमा करने की एक तरीका है, उसमें से 80% जो औरतें हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनका ये आंकड़ा माना जाता है कि औरतें जो हैं वो लेबर फोर्स में हैं, पर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनमें से अधिकतर को कोई वेतन नहीं मिलता। They are unpaid laborers on family farms, और जो भी फैमिली के छोटे एंटरप्राइजेस हैं उनमें काम कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी कैजुअल लेबर में पिछले 7-8 साल में 31% से घटकर 19% तक पहुंच गई है, और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो करीब 10% के आंकड़े में पिछले 10 साल से थी, उतनी की उतनी ही है। महिलाओं की वेज का डेटा लेबर ब्यूरो जमा नहीं करता। लेबर ब्यूरो ने अपना ही डेटा अभी पीछे ही देकर कहा है कि जो ग्रामीण वेज है वो पिछले 5 साल में 0.2% की दर से बढ़ी है, और ये पुरुषों की वेज है, महिलाओं की वेज भी जो है वो नहीं बताई गई। तो महिलाएं have been completely invisibilized in जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो इस वक्त सामने आ रहा है वो पीएम किसान है। बार बार हमने देखा इस बजट के अंदर भी कि पीएम किसान को लेकर इतना जोर जोर से कहा गया कि इसमें महिलाएं 30 लाख महिलाएं जुड़ गई हैं, 20 लाख महिलाएं और जोड़ दी गई हैं, ये महिलाओं के लिए है। अगर आंकड़े देखे जाएं जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुए, वो आपस में मेल नहीं खाते, जो उनके पोर्टल पे डेटा है और जो उसके अंदर बोला जा रहा है। 1 नवंबर 2023 का आंकड़ा है जिसमें पार्लियामेंट में ये बताया गया था कि 8.12 करोड़ जो हैं वो बेनिफिशियरीज हैं पीएम किसान योजना के, जिसके अंदर 6.27 are male, which is 77% are male beneficiaries, और 1.83 are women beneficiaries। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो पीएम किसान योजना है ये जमीन की ओनरशिप के साथ जुड़ी हुई है, और अगर महिलाओं की जो 70% महिलाएं खेती के साथ जुड़ी हुई हैं, ओनरशिप के आंकड़े देखें तो 12.8% जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो वुमेन ओनरशिप के अंदर आती हैं, जो हिंदुस्तान के पूरे लैंड मास का 10% है जो खेती के नीचे है। तो महिलाएं अपने आप से इन स्कीम से जो कि पिवट हैं, मतलब इस वक्त आज अगर मोदी सरकार ये कह रही है कि हम लोगों की गरीबी दूर कर रहे हैं और बड़े बड़े आंकड़े भी आ रहे हैं, तो उनमें जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं वो एक मेजर पार्ट है, और अगर उन डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से ही महिलाएं निकलती जाएं तो ये हमारे लिए बहुत फिक्र की बात है। और ये आंकड़े अपने आप में एक एवरेज है। मैं छोटा सा उदाहरण देके बंद कर रही हूँ कि अगर हम पंजाब का आंकड़ा देखें जो एक कृषि प्रांत है, प्रधान प्रांत है, अर्जुन मुंडा ने फरवरी में जो मिनिस्टर है एग्रीकल्चर, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बताया
कि हमारे जो किसान बेनिफिशरीज हैं पंजाब के अंदर कितनी महिलाएं बेनिफिशरीज हैं 2189 out of the 6.4 lakh beneficiaries. Women in Punjab who are the backbone of agriculture, who we saw at the borders of Delhi sitting shoulder to shoulder with men farmers, are only 0.34% of the beneficiaries in Punjab. Women in Punjab hold only 17,000 land holdings are under their ownership, which form 1.5% of the total holdings in Punjab. तो ये महिलाओं की स्थिति है। इस स्थिति से अगर ये कहा जा रहा है कि हम महिलाओं का एम्पावरमेंट कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें दे रहे हैं, हमारी सरकार उनको दे रही है और आम जनता ये बिलीव कर रही है कि सरकार की सारी जो पॉलिसीज हैं वो महिलाओं के लिए हैं, जो कि एक सरासर झूठ है अगर हम आंकड़ों को देखें। और किसान मजदूर कमीशन ने ये काम और ये कमिटमेंट है कि इन आंकड़ों को महिलाएं जो साथ में लड़ रही हैं, women are in resistance but they are alone in their resistance. उन्हें साथ तो लिया जाता है हर किस्म के जो प्रतिरोध होता है, पर जो प्रतिरोध से निकले हुए अगर कुछ भी सरकार में से लाभ हैं, जो हक हैं, वो महिलाओं के पास नहीं आते। तो ये कमीशन determined है, we are committed to taking this forward, to amplifying these voices कि कौन किस तरह से exclude होता जा रहा है, is being written out of policy, and women are the biggest section who are the major victims of इस सरकार के झूठ और इनकी जो प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं। मैं ये जोड़ना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि ये आंकड़े इम्पोर्टेंट हैं। मैं हननवाला से गुजारिश करूंगी कि वो बात करें। थैंक यू नौजवान जी। जो अभी तक जो हमारा वक्तव्य ने आपके सामने रखा, कमीशन क्या है, क्यों हुआ है, इसका पर्पस क्या है और इस पे क्या क्या विषय को हम उजागर करेंगे। मैं यही बात कहूँगा, तो आज हमारा हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर ये संकट से गुजर रहे हैं। समस्या नहीं है, समस्या को समाधान कर सकता, मगर संकट है जो समाधान नहीं कर सकता, तो रास्ता नहीं है ये खुदकुशी करने, कोई तो रास्ता नहीं बचता है। तब रोज जो 35-40 किसान खुदकुशी कर रहे हैं रोज और एवरीडे, क्योंकि उसके सामने कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कैसे इस संकट से निकले, कैसे इस समस्या से निकाल के अपना परिवार को बचाए, अपना उत्पादन व्यवस्था को बचाए। ये है संकट। और एक इसी संकट के खिलाफ जो हम किसान लड़ रहा है, क्योंकि किसान अपना अनुभव से समझा है कि हमारा देश में जो कृषि नीति है, असल कारण हमारा संकट का यही है। असल में नीति से तय होता है, कोई व्यक्ति का डिसीजन, सरकार का डिसीजन, ये सब बात नहीं इंडिविजुअल। हम पॉलिसी क्या है, क्योंकि आजादी का बाद जितना कृषि नीति हुआ है, वो कृषि नीति का मुख्य जो लक्ष्य था वो किसान नहीं था। आजकल जो हम बोला कि आज नवोदारवाद नीति आने के बाद वो समस्या और तीव्र हुआ है। नीति कैसे होता है? आप नीति होता है जिसके आधार पर उसको समस्या को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको समाधान का प्रतिकार किया जाएगा, उसको समाधान के बाद उसको बेहतर जिंदगी दिया जाएगा। मगर आज नहीं है, कृषि का योगदान हमारा अर्थनीति में धीरे धीरे घट रहा है। आज 100 रुपया जो योगदान है किसी में, उसमें 17 रुपया मात्र खेती जाता है। मगर जनता का 50% से ज्यादा कृषि है, और एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में जितना है उसका 50% एग्रीकल्चर में है। 50% एग्रीकल्चर, शहर में नहीं है। तो 50% एम्प्लॉय देने वाला जो सेक्टर है, और जहाँ सारे किसान जिसको उत्पादन करके
वो जो हमारा जिंदा रखते हैं अन्नदाता, आज उसकी समस्या सबसे ज्यादा है। हमारा पूर्वोत्तर ने सारे समस्या बताया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मगर मेरे कहना यही है, इसके कारण यही है कि जब नीति तैयार होता है किसी एग्रीकल्चरल पॉलिसी, उस एग्रीकल्चरल पॉलिसी के सेंटर में किसान नहीं। पॉलिसी के दो अप्रोच हो सकता है, एक है किसान को सेंटर में रख के पेरिफेरियल इशू को तय करना, एक पॉलिसी होता है, और एक पेरिफेरियल इशू को सेंटर में रख के किसान के पेरिफेरी में रखना, ये दो अप्रोच होता है। आज हमारा देश में आजादी के बाद से लैंडलॉर्ड जो शासन वर्ग का हिस्सा रहा और लैंडलॉर्ड की जो पॉलिसी के प्रभावित करने का काम था, उसके वजह से किसान को कभी सेंटर में नहीं रखा गया। क्या होता है, हमारा सेंटर में किसान रहे और उसको आसपास में उसका उत्पादन, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका मार्केटिंग, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस सब जो उसके इर्द गिर्द रखो, तो किसान को केंद्र में रख के किया जाए तो किसान को बेनिफिट। मगर जो हो रहा है हमारे देश में, वो किसान सेंटर में नहीं, उसका उत्पादन, उसका प्रॉफिट, उसका एक्सपोर्ट, उसकी इंपोर्ट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के इसमें क्या रोल होगा, ट्रांसपोर्ट क्या होगा, उसका स्टोरिंग क्या होगा, ये जो है ये है सेंटर, और किसान पेरिफेरी में, पेरिफेरी में रहने को बेनिफिट नहीं है। किसान के हमारा कहना है, किसान को सेंटर में नहीं लाओ तो किसान को फायदा नहीं मिलेगा। आज ये जो बना है हमारा फ्रेंड्स ने, फार्मर्स फ्रेंड्स जो आंदोलन के समय से काम कर रहे हैं, इसको भी वही लक्ष्य है, ये हमारा देश के कृषि नीति के अप्रोच को बदलो, और अप्रोच बदलने के लिए हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, ये एजेंडा यहाँ पेश किया गया है। इसलिए हमारा एक तो एजेंडा है, आपके पास सब है, पर हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमारा देश में मिडिल क्लास एक जमाने में पब्लिक ओपिनियन था, बुद्धिजीवी होता था, पढ़ना लिखना ये सब करना, आज सब छोड़ के धंधा में चले। हमारा कितना नवोदारवादी पॉलिसी से कितना बेनिफिट हमारा होगा, कितना पैसा हमारा होगा, कितना विदेश में बच्चे को पढ़ाएंगे, कितना घर होगा, कितना गाड़ी होगा, इसके बजाय बाहर जो मिडिल क्लास का सोचते हैं, मिडिल क्लास ही सोचता, सोचने का जो मेन फंक्शन होता था हमारे देश में, वो मिडिल क्लास होता था। आज मिडिल क्लास अपना हित के बिना कोई सोच ही नहीं रहा, आप उसको जो समझाया जा रहा है वही सोच समझ रहा है। हमारा देश का अन्नदाता हमारा 10 लाख कृषि किया है, मगर शहर का लोग मालूम नहीं, शून्य के बल ऐसा है, जो अन्नदाता की वजह से आप जिंदा रह रहे हैं, वो मर रहा है, क्यों मर रहा है, ये सवाल किसी का दिमाग में नहीं। आज इसलिए जब तक हम सेंटर पे किसी नीति का सेंटर में किसान को नहीं लाएंगे, उसका समस्या है, उसका उत्पादन में उसका पे, उसका इनपुट्स का प्राइस क्या होगा, उसका इरिगेशन का समस्या क्या होगा, उसका सीड्स का क्या होगा, ये सब स्टोरिंग का क्या होगा, ये सब जब तक हम किसान के बीच में रख के नहीं करेंगे तो किसान का बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आवाज उठ रहा है, डबल इनकम, ट्रिपल इनकम, सब झूठ जुमला साबित हो रहा है। इसलिए हम लोग आभारी हैं कि किसान का समस्या को जो बुद्धिजीवी का बहुत बड़ा भूमिका होता है, आप किसान हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, मगर प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज है, रोज काम करते हैं, मगर उसके पीछे आगे पीछे जो गहराई से जाके जो पॉलिसी तैयार करना है, वो पॉलिसी तैयार करने के लिए बुद्धिजीवियों को बड़ा भूमिका है। और इसलिए स्वामीनाथन आज किसान का इतना बड़ा पूज्य है। आज इसलिए ये जो किसान कमीशन जो काम किया है, इस इशू को सामने लाया, एजेंडा सामने लाया है, क्या क्या इशू होना चाहिए इसको सामने लाया है, किसान को कौन किसान है, उसका चरित्र क्या है, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, उसको सामने लाया है, और उसके लिए क्या क्या पॉलिसी तय करना चाहिए। ये इसलिए मेरी जो पॉलिसी है
आने वाला दिन में हम लोग इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लड़ेंगे। हम किसान आंदोलन के कार्यकर्ता जो है इसको जनता के बीच में ले जाएंगे, यही जो है हमारा जीने का रास्ता। मोदी जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ से उसको जन्म हुआ, झूठ से जिंदा रहता है और झूठ से मरेगा। झूठ के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। 24 घंटा झूठ झूठ झूठ। किसान के लिए वादा किया था तो स्वामीनाथन कमीशन का लागू करेंगे, सुना है सिर्फ गद्दार। हम जो लड़ाई किया, आंदोलन किया, उसको झुकाया, मजबूर किया। जिंदगी में पहले बार उसका हार हुआ किसान के सामने। वो इसलिए किसान को बदला लेना चाहिए। वो हार नहीं सकता, भगवान के ऊपर है, विश्व गुरु है, वो कैसे हार सकता। और किसान उसको हराया, ये उसको नींद हराम कर दिया। सुबह शाम उसको दिमाग है किसान आपको हराया, इसको बर्बाद करना है। इस दृष्टि से ये रिवेंज ले रहा है किसान। इसलिए साथियों ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आपको लड़ाई हमको लड़ना है ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और चुनाव सामने है, इसी समय ये बहुत महत्वपूर्ण समय में ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। क्योंकि हमारा देश में अदर पॉलिटिकल पार्टी भी है, वो कोई ऐसा फिरस्ता नहीं है, उसमें भी से ऐसा लुटेरा है, उसमें भी शोषक है, उसमें भी किसान विरोधी लोग हैं। मगर इसके दबाव तैयार करें जन आंदोलन से तो उसको हम प्रभावित कर सकते। तो इसलिए जो इशू उठाया है इस इशू को Friends, before me, already our friends have told many things. I have mentioned 3-4 aspects. First one is, this is Kisan Mazdoor Commission. I think many commissions working on agriculture, but this commission peculiar speciality we have addressed who are engaging in agriculture. We addressed everything: farmers, agriculture workers, tenants, artisans, then all social groups. This is the main aspect of this commission. Secondly, in India, agricultural workers number very increasing gradually. For example, 1950-51, 70:30 means 70 for 30 agriculture workers. Recent available data, 100 for 122 means 100 farmers, 122 agriculture workers. This is the horrible situation. Farmers number decreasing, agriculture workers number increasing. This is the main aspect in India. Third one is employment guarantee, employment situation. 20 years ago, rural India provided more than 140 days per year. 10 to 20 years ago, 70 to 80 days. Now decreased 45 to 50 days only in agriculture provided in mandates. Why? Because of many things is there. Land utilization, crop pattern, mechanization, depending on agriculture, rural India and etc. Now the horrible situation after COVID, everyone discussing about migration, rural to urban. After COVID, urban returns to rural. That is the main aspect. In rural India, now facing the unemployment. This is the situation. That's why in Kisan Mazdoor Commission, we have mentioned 200 days per year, 800 to 800 rupees per day. That is the one important aspect we mentioned. Second thing, landless. Our friend told. What about in Punjab? 1/3 population of Punjab belongs to Dalits. Not only 1/3, 36% of population belongs to Dalits.
Dalits means agriculture workers, migrant workers, Delhi urban labor. What their condition? We have studies. We are talking about the first green revolution state, one of the Punjab. Now the Punjab agricultural labor, they are facing many problems. Untouchability also there. So that's why the second important thing, land distribution. Everything at the time of independence, after independence, plannings and etc., we are addressing land distribution. Now the government, they change land distribution mean land will give to corporates. That is the change of that word. Land give to corporates. Lakhs hectare lands. For example, in many areas, this government lakhs land given to Adani and Ambani or Tatas. Now they started land banks of also name of development, name of infrastructure. They started land banks. Land banks means they forcibly acquisition from poor and marginal farmers and agricultural labor. They called land bank. They give to corporates and rich. That situation is there. So finally, I request to media, especially in agriculture workers, we are this most of sufferers in rural India. We are not facing economical issue, we are facing social issue. Nowadays also, agriculture workers do not enter to temple, do not enter to drinking water, do not enter to Sri Rama temple also. That situation is there. Every day in India, attacks on agriculture workers, Dalits, Adivasi, this is the common phenomenon. For example, generally we are talking about suicide farmers. But National Crime Bureau they report says latest figures. The agriculture worker they committed suicide more